اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی تابود خورشید ماہی چراغے چشتی آرا روشنائی۔ اکثر جو ہے صوفیاء کرام کے جو کلچر ہے، صوفی کلچر جسے کہتے ہیں، جو بر صغیر میں انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما اور ہمارے پڑوسی ممالک میں جہاں پہ رائج ہے، تو اکثر جو ہے تو اب یعنی کہ جہاں پر اب علمائی انداز آ گیا ہے، تو علمائی انداز آنے کے بعد بہت سارے لوگ یعنی کہ عجیب عجیب طریقے سے یعنی کہ صوفیاء کرام کے طریقے پر طنز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سلسلہ مداریہ کے لوگ جب بڑے بال رکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا اس کا بال ہے، یہ نہاتا کیسا ہوں گا، دھوتا کیسا ہوں گا، ہے نا؟ جبکہ اس کو شرعی مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے کہ غسل کے اندر جو ہے، جو سر سے لگا ہوا، ہماری پیشانی سے سر سے لگا ہوا جو حصہ ہے، اس کی جڑوں میں اگر پانی پہنچ جائے تو بس غسل کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر ہمارے بال اوپر بڑے ہوئے ہوں تو ان بالوں میں پانی نہیں بھی لگے تو چلتا ہے نا؟ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے، مگر کیا ہے، مفت کے مفتی ہیں، پہلے کے پہلے ہی جواب دینا تو ان کو بنتا ہی ہے، پہلے ہی جواب دیتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا بال ہے تو نہاتے کیسے ہوں گے؟ ابھی تو اتنا بڑا بال رکھ کے بتاؤ، پھر اس کے بعد پوچھنا، خود کر لے تو ایکسپیرینس۔ اسی طریقے سے ہمارے چند چیزوں کے اوپر سوال کیا جاتا ہے، جیسے ہاتھ میں کڑا پہنتے ہیں، اس پر سوال ہوتا ہے، یا ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں تو اس پہ سوال ہوتا ہے، یا کان میں بندے پہنتے ہیں، بالی پہنتے ہیں تو اس پہ سوال ہوتا ہے۔ اب جو کان میں بالی پہنتے ہیں، یا پھر یہ جو ہم لوگ یہ گنڈا جو پہنتے ہیں سرکار غریب نواز کا، یہ والا، اسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں پہننا چاہیے۔ اس طریقے سے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ بھئی یہ سب نہیں پہننا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہے جیسے ہاتھ میں کڑا ہو گیا، کان میں بالی ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ بھئی عورتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے، اس لیے جو تو اس کو نہیں پہننا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ تو جو ہے میں نے اس معاملے پر کئی مشائخ، کئی علماء کو کہا کہ بھئی اس پر آپ اچھا مدلل بیان دیجیے، مگر کیونکہ کوئی بھی جو ہے تو اس پر جلدی آیا نہیں سامنے، کہ میں نہیں سوچا کہ میں ہی آؤں اور اپنی ذاتی رائے رکھوں۔ جہاں تک میری ناقص معلومات ہے میں لوگ پیش کروں اپنی معلومات، اور اس میں اگر کچھ غلطیاں اور خامیاں ہوں تو سامنے والا جو ہے تو ریفرنس کے ساتھ میں جو ہے تو مجھے علمی اور ادبی طریقے سے اس کا جواب دے، کیونکہ میں علمی اور ادبی طریقے سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عالم عرب کے اندر جو ہے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کنیز بنایا جب جاتا تھا تو یا تو ان کے کان جو ہے تو ٹوچ دیے جاتے تھے، کان ٹوچ کے اس کو باندھ دیا جاتا تھا، یا ناک میں جو ہے تو سوراخ کر دیا جاتا تھا، یا زبان میں سوراخ کر دیا جاتا تھا، یا پیر میں بیڑیاں ڈال دی جاتی تھی۔ اس طریقے کا کام کیا جاتا تھا۔ ایک واقعہ ہمارے وہاں ہوا، جہانگیر کے عہد میں ایک مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے کے اندر جو ہے مسلمانوں کے دو فرقوں کے درمیان میں مناظرہ تھا، اور جو دوسرے فرقے کا فریق جو تھا اس نے جو ہے تو حضرت خواجہ شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گستاخی کر دی۔ گستاخی کرنے کی وجہ سے جو ہے تو شہنشاہ جہانگیر جو ہے اس عالم کا قتل کر دیا، اور یہ مناظرہ جو ہے تو جہانگیر کی جو بیگم تھی نور جہاں، اس نے رکھوایا تھا، ایک خاص مذہب کو اپنے دین کا حصہ بنانے کے لیے۔ تو جب نور جہاں ہار گئی، اس کا قتل کرا دیا، اور کہا کہ نور جہاں نے اس کو ہائر کیا تھا مناظرے کو، تو کہا گیا کہ نور جہاں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، دونوں ہاتھ، یہ قاضی کی طرف سے حکم ہوا۔ مگر عدلیہ کا حکم ہونے کے بعد جو ہے شہنشاہ کی چہیتی ملکہ تھی، اس لیے بادشاہ جہانگیر نے جو ہے تو ہاتھ کے اوپر جو ہے نور جہاں کے ہاتھ کے اوپر جو ہے تو انگار کے راڈ کے داغ لگا دیے،
है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे अंगार का जख्म का निशान हो गया। तो इसकी वजह से नूर जहाँ ऐसा कड़ा इन्हें पहनती थी जैसा औरतें पहनती हैं, है ना। ये बात को जो है तो सीरत फ़खरुल आरफीन में जो है हज़रत शाह अब्दुल हई चटगामी रहमतुल्लाह अलैह और ने भी लिखी है, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस पूरे वाक़े को कलमबंद किया है ना, तोहफ़ा असना सरिया में। और शाह अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत फ़खरुल आरफीन में इस वाक़े को पूरा कलमबंद किया है। उसी के बाद जो है तो हमारे यहाँ ख़ास तौर से महाराष्ट्र के अंदर औरतें मंगलसूत्र पहनती हैं। अगर किसी औरत का मंगलसूत्र ना रहा तो ऐब समझा जाता है। अब हमारे यहाँ मालेगांव में बड़ा यानी कि मुस्लिम माशरा रहा, तो हमारे यहाँ उम्मन हमारे घरों में भी औरतें ज़रूरी नहीं है कि मंगलसूत्र पहने। अब पैर में जो है तो पैर में जो जुड़वी पहनते हैं, नहीं जुड़वी कहते हैं, जो पैर के उंगलियों में पहनते हैं औरतें, सुहागन औरतें, ये हमारे यहाँ मालेगांव में अक्सर जो है तो नहीं पहनते हैं औरतें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आसपास में या कहीं शादी ब्याह में किसी मौके पर कहीं गए तो ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि इनका मंगलसूत्र क्यों नहीं है, लोग एतराज़ करते हैं। लेकिन कहा जाता है कोई हमारे वहाँ वैसी रस्म नहीं है, मगर उमूमन राइज है। मगर इन्हें चूड़ियाँ पहनना, मंगलसूत्र पहनना, पैर में जुड़वी पहनना, ये जो है तो ये निकाह की शराइत में थोड़ी ना शामिल है, मगर जो है तो औरत दिखाने के लिए तहजीब में पहनती है, तहजीब का हिस्सा है, तहजीब मज़हब का हिस्सा है। ये चीज़ें क्यों आई, औरतें क्यों पहनती है, पहले ये बताइए आप। ये औरतें जो है गुलामी में जब थी तो वो कान को चाहती थी, नाक को चाहती थी, फिर बाद में वो राइज हो गया। अब उसके अंदर जो है बाद में जो हुआ कि जो है किसी की वफादार और किसी की सुहागन बन के रहे औरत, तो इसलिए जो है तो ऊँट की नाक में नकील होती है। तो इसलिए जो है तो पुराने ज़माने में भी हमारे यहाँ पर यानी जब बच्चियाँ जवान होती थी तो उनकी नाक में नट डाल दी जाती थी, जब उनकी शादी होती थी तो उतरती थी। अभी भी कई जगह वो रिवाज है हमारे यहाँ पर। इसी तरीके से पैर में जो पाजोक पहना जाता है, हाथी के पैर में जंजीर होती है, कुत्ते के गले में पट्टा होता है ना। जो लोग ये कहते हैं ना ये वाला धागा नहीं पहनना चाहिए, इनके ही बुजुर्गों कहते हैं मुझको है शक, शक को है दर, हर दर को है तुझसे निस्बत, मेरी गर्दन में भी है खैर से नूर का डोरा तेरा, है ना। और वही लोग कहते हैं कि डोरा पहनना हराम है ना। इन्हें मानते तो हैं उनको, मगर उनकी नहीं मानते हैं जिनकी मानना चाहिए। तो इसी तरीके से जो है तो इन्हें फ़कीर लोग जो कंठा पहनते हैं इस पर भी लोग इतराज़ करते हैं, ये कहाँ लिखा है, कहाँ से साबित है। कड़ा पहनते हैं तो इस पर भी इतराज़ करते हैं, कहाँ लिखा है, कहाँ से साबित है। इसी तरीके से हाथ में जो अंगूठियाँ पहनते हैं ये कहाँ लिखा है, बोले एक अंगूठी पहनो, इतने ही मासी को पहनो, इससे ज़्यादा की मत पहनो। ये रसूलुल्लाह ने नहीं कहा, ये तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखा हुआ है। और कहा गया कि बादशाह की मुहर के लिए इन्हें भाई इतनी बड़ी अंगूठी रहे और एक से ज़ायद अंगूठी ना पहने, है ना। ये उसके लिए लिखा गया है। नहीं तो आइम्मा मासूमीन की ज़िंदगी में देखेंगे तो आइम्मा मासूमीन की ज़िंदगी में अलग अलग कई अंगूठियाँ आइम्मा मासूमीन पहना करते थे। ये एक फतवे को जो है तो इजमाए उम्मत के तौर पर आप बयान किया जा रहा है और लोग एक्सेप्ट तो करते हैं आंखें बंद करके आमन्ना सदकना, है ना। इसी तरीके से कान में जो बाली पहनते हैं या हाथ में जो कड़ा पहनते हैं, पीर नसीरुद्दीन नसीर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह खुतबात नसीर जिलानी में, है ना। मैं ये आपको आगे डाल दूंगा मैं इसके रेफरेंस। ये जो किताब है इन्हें पीर नसीरुद्दीन नसीर ये खुतबात नसीर में सफ़ा नंबर 284 पर आप इरशाद फरमाते हैं, मगर जरा तकलीद करके दिखाएं आबिदे बीमार की कि इतना दूर दराज का सफ़र बीड़ियाँ पहन कर बीमारी की हालत में, बुखार की हालत में किस तरह किया। तकलीद करने के लिए कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं बड़े बड़े जय्यद उलमा जो दीन की बातें सिखाते हैं और बड़े बड़े मशाइख जो दीन को रमूज को बताते हैं। उसके आगे यह जुमला कहने के, मगर जरा तकलीद करके बताएं आबिदे बीमार की कि इतना दूर दराज का सफ़र बीड़ियाँ पहन के किया। तो जब आबिद बीमार की तकलीद करने के बारे में अल्लामा पीर नसीरुद्दीन जिलानी फरमा रहे हैं, कौन पीर नसीरुद्दीन जिलानी, जो आला हजरत शहंशाह गोरला शरीफ पीर महर अली
सरकार के सज्जादा नसीन, जिन्होंने जो है तो कादियानियत का कला व कमा किया, वो फरमा रहे हैं तकलीद करके बताओ। तो हम आबिद बीमार के यहाँ नाम पर अगर हम बीड़ी पहने हैं, कड़ा पहने हैं, तो हर जो क्या है वो तो कहेंगे कि पूरा ऐसे तकलीद करके चल के बताओ, है ना। ये तो पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का ये नहीं हुआ। अब रह गया तारीख तिबरी के अंदर एक वाक़या है। तारीख तिबरी के अंदर जो है तो एक वाक़या है, और उसको इस वाक़े को जो है तो तारीख इब्न कसीर में जो है हाफिज अमादुद्दीन इस्माइल बिन कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 774 हिजरी, इन्होंने भी जो है इस वाक़े को यानी कलम बंद किया है। मगर दोनों के वाक़े में थोड़ा सा फ़र्क है ना। तारीख तिबरी के अंदर जो वाक़या है तो कुछ यूँ है। पहले मैं तारीख इब्न कसीर वाला वाक़या जो है तो आपको बता देता हूँ। तारीख इब्न कसीर में लिखा है यानी कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वहाँ का यानी कि वो है कि हानी बिन सीद हजरी ने नकल किया है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनका कहना है, हम तो अलैहिस्सलाम कहते हैं, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कत्ल के दिन खड़ा था। यानी हानी बिन सीस हजरी ने नकल किया है कि मैं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल के दिन खड़ा था। मैं हर आदमी के घोड़े पर सवार, हम में का हर आदमी घोड़े पर सवार था। अचानक आले हुसैन के खेमे से एक नौजवान खेमे का खूंटा हाथ में लिए हुए बाहर आया, यानी खेमे में से एक डंडा लेकर बाहर आया, और इसने कमीज और तहबंद पहन रखा था, और हालत खौफजदा में वो इधर उधर मुड़ कर देख रहा था। यूं मालूम होता था जब वो मुड़कर इधर उधर देखता था तो इसके दोनों कानों के दरमियान मोतियों की हरकत देखता था। इसके दोनों कानों के दरमियान मोतियों की हरकत, यानी दूर से जब आदमी देखे, जब बुंदा पहना हुआ आदमी तो चमकेगा ना। तो इमाम हुसैन के खेमे से एक बच्चा बाहर आया, और इस वाक़े को जो है तो अल्लामा इब्न कसीर लिख रहे हैं, है ना। और तारीख तिबरी में भी लिखा है, मगर इसके अंदर थोड़ा सा इसमें ये हुआ कि अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा कि वो जो बच्चा आया था वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में से आया था, यानी वो आले मोहम्मद में से वो बच्चा इन्हें सैयद ज़्यादा था। और इसी वाक़े को जो है तो तिबरी साहब लिखते हैं कि हानी हजरी कहता है कि कत्ल हुसैन के रोज़ मैं भी मौजूद था। 10 सवारों में से एक सवार था। घोड़े चारों तरफ दौड़ते रहे। मैंने वल्लाह एक लड़के को देखा कि खेमे की एक लकड़ी हाथ में लिए हुए निकला, कुर्ता पैजामा पहने हुए था, डरता हुआ कभी दाहिनी तरफ देखता कभी बाईनी तरफ। इसके दोनों कानों में बूंदे थे, जब इधर उधर मुड़ के देखता तो बूंदे हिलते की तस्वीर मेरी आंखों में आज तक है। यानी वो बच्चा जब इधर उधर मुड़ के देखता था, जो उसके बूंदे हिलते थे, उसकी तस्वीर आज तक है। तो मालूम हुआ कि कानों में बालियां पहनना ये तो आले मोहम्मद के घर का शेवा है ना। आले मोहम्मद के घर का शेवा है कानों में बालियां पहनना, हाथ में कड़ा पहनना, और 3 अंगूठियां पहनना आले मोहम्मद से साबित है। जो कहते हैं कि एक अंगूठी पहनना ये इजमाई उम्मत थोड़ी ना है। हम जो है रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, हमारा दीन दीन मोहम्मदी है ना। हम जो है तो तुम ये कहते हो कि भाई तुम्हारे वहाँ इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद हो गया है, तुम किसी का इज्तिहाद नहीं कहते हो, झूठ लोगों में फैलाते हो कि 4 मुसल्ले बरहक हैं, यही सबसे बड़ा झूठ है तुम्हारा। कब अल्लाह के रसूल ने कहा कि 4 मुसल्ले की पैरवी करना? अल्लाह के रसूल ने तो कहा था इन्नी तरफ तो फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाहि व इतरतिही, कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिरा कर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, किताब अल्लाह की किताब और अहले बैत। अब अहले बैत के घर से दीन लेंगे तो आपको मालूम होगा कि दीन क्या है। अब आप अहले कहने से लेंगे, बोलेंगे औरतों की मुशाबियत है। अब औरतों की मुशाबियत है तो हमारे बचपने में हम लोग पैजामा पहना करते थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा पैजामा पहना करते थे। कुछ ज़माने में नया पाकिस्तानी सूट आया, वो पंजाबी सूट, पठानी सूट, वो सलवार पहनते थे कुछ लोग, तो लोग हंसते थे कि देख एकदम बिल्कुल औरतों के जैसे सलवार पहन रहे हैं। कि क्या अब पठानी सूट आम हो गया है, लोग सलवार पहनते हैं, तो क्या औरतों से मुशाबियत है? इसको औरतों से मुशाबियत कही जाएंगी? नहीं कही जाएंगी भाई। मुशाबियत क्या है वो एक अलग चीज़ है कि भाई
जिस तरीके से औरत जो है तो मेकअप करती है, या औरत जिस तरीके से पर्दा करती है, या औरत जिस तरीके से चाल ढाल चलती है, या औरत जिस तरीके से वो करती है कि हम यानी कि औरतों की हरकतें करने लग जाएं, मर्द हो के औरतों वाली हरकतें, वो वाली हरकतें जो फिजिकल हरकत है तो मुशाबियत है ना, इंटरनल हरकत, एक्सटर्नल नहीं तो आज की औरतें तो जींस और टी शर्ट भी पहन रहे हैं, मर्द भी पहन रहे हैं। तो बातों को समझने की जरूरत है सूफियों के ऊपर। हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सिलसिला आलिया चिश्तिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, हज़रत मौलाना फ़कर फ़ाक फ़कर दीन फ़कर जहाँ के खलीफा हैं। आपका मज़ार बरेली शरीफ में मराजाउल खलाएगा, बल्कि बरेली शरीफ के कुतुब आप ही हैं, है ना, कुतुब बरेली आप ही हैं, शहंशाह बरेली आप ही हैं। आपके तमाम सज्जादगान जो हैं अपने बालों के अंदर जो है तो चोटियाँ डालते हैं। इस तरह औरतें चोटियाँ डालती हैं, औरतें उस तरीके से चोटियाँ डालती हैं। मैं जो सिलसिला आलिया चिश्तिया से मुंसलिक जो दरगाहें हैं, अब वहाँ पे खानकाहों के अंदर दारुल उलूम और दारुल इफ्ता खुल गया है, उनके मुफ्तियों से सवाल करता हूँ मैं, क्या है इनका करना इस तरीके का किस तरीके से जायज़ है? जब आप कहते हो कि बुंदा पहनना मना है, या फिर सिलसिला वारसिया के जो लोग हैं अपने पैर के अंगूठे के अंदर जो है तो हल्का डालते हैं, इस तरीके से पैर के अंगूठे में हल्का डालते हैं, इस तरीके से हल्का पहनते हैं सिलसिला वारसिया के लोग। ये दोनों पैर में लोखंड का हल्का पहनते हैं, तो ये हल्का पहनना, ये फिर इनका ये कहाँ तक का दुरुस्त है? अगर आप सिलसिला वारसिया को सही जानते हो तो फिर इनका हल्का पहनना कैसा? या फिर हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा नहीं होते किसी के वहाँ, या बच्चे जल्दी जीते नहीं हैं, इनकी औलादें नहीं होती, या बच्चों को नज़र बद होती है, तो अक्सर हमारे यहाँ माएँ, हमारी अहले ख़ानदान के लोग मन्नत मानते हैं। हिंदुस्तान में तो हमारे यहाँ ख़ास तौर से तो हुजूर गौसे पाक के नाम की बीड़ी उनको 5 साल की, भाई मेरे वहाँ औलाद हुई तो हुजूर गौसे पाक के नाम की बीड़ी 5 साल तक का मैं पहनाऊँगी। यानी बीड़ी बोले तो यही हथकड़ी जो होती है, इसको यानी क्या है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये जो निशानी है, तो ये बीड़ी डालेंगे। या फिर जो है तो कोई हज़रत अब्बास के नाम की बीड़ी डालता है, या कोई बीबी सकीना के नाम की कान में बाली डालता है, या फिर जो है तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम की जो है तो हाथ में जो है तो हथकड़ी या बीड़ी पहनते हैं। तो और फिर ये जो है तो बाज़ लोग जो है तो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं वो भी पहनते हैं, बाज़ लोग पंचधातु पहनते हैं। तो अब अगर पंचधातु पहनना या इस तरीके से ये तांबे का पहनना या सिलसिला वारसिया के लोगों का लोहे का कड़ी डालना अगर गलत है, तो फिर सोने का दांत लगाना कैसा है? सोने का दांत लगाना कैसा? और फिर अगर पंचधातु अगर पहनना गलत है, तो जब एक सहाबी की नाक जो है तो कट गई थी एक जंग के अंदर, सरकार दो आलम ने उनको कहा कि सोने की नाक आप लगा लीजिए आर्टिफिशियल, तो वो फिर लगा सकते हैं। तो फिर जो है तो हम जो है तो इलाज के लिए या दूसरे मोहब्बत के लिए या अकीदत के तहत इन सारी चीज़ों को पहनना हम क्यों यानी कि इसको गलत कह सकते हैं? एक शख्स तो हमको ही मिला बॉम्बे में, बेवकूफ़ अत्तारी मक्कारी था, मुझे बोलने लगा कि तुम्हारा वज़ू नहीं हुआ। मैं परेशान हुआ, बनाया मेरा वज़ू कैसे नहीं हुआ, कोई हिस्सा कोई वज़ू सूखा रह गया क्या? फिर कहता है कि आपका गुस्ल भी नहीं हुआ। मेरा गुस्ल नहीं हुआ, दीवाना तो नहीं हो गया मना ये? बात क्या है? बोले आप कान में बुंदा पहने हुए हो, बाली पहने हुए। मैं उस वक्त तो बाली पहना था, अभी उतारा हूँ मैं फिर पहनूँगा। कान में बाली पहने हुए हो, तो बोले तुम्हारा गुस्ल नहीं हुआ। तो बेवकूफ़ को गुस्ल के मसाइल भी जिनको मालूम नहीं, जिनको इस्तिंजा और इस्तिब्रा के अंदर फ़र्क को मालूम नहीं, वो फतवा देने आते हैं, है ना। बाद जगह तो मस्जिदों के अंदर दादागिरी से आए दहशत गर्दी के तहत यानी कोई बच्चा पहन के जाता है तो उसके कान में से उतार देते हैं। मस्जिदों के मुल्ला जो हैं दहशत गर्दी करते हुए, आतंकवादी करते हुए मस्जिदों में ऐलान करते हैं कि कोई दूसरे मसलक का आया हो तो बाहर निकल जाए, और कोई हाथ में हाथ के ऊपर चैन की घड़ी पहना है तो निकाल ले, ऊपर के बटन लगा ले, 2 अंगूठी पहना हो तो एक पहन ले। ये सब दादागिरी और दहशत गर्दी है, ये दीन के अंदर ज़बरदस्ती है। इससे मना किया गया ला इकराह फिद्दीन।
غسل کیسے نہیں ہوگا؟ اگر جو ہے ہمارے ظاہری بدن کے اوپر سے پورے بدن پہ سے پانی گر گیا تو غسل ہو جاتا ہے. ہمارے اندرونی حصوں کے اندر اگر پانی نہیں گیا تو اس کا غسل سے کوئی وہ نہیں ہے سروکار. یعنی جو ہمارے بدن کا ظاہری حصہ ادھر سے ہو گیا. تم کو فقہ نہیں معلوم، فقہ کے اصول نہیں معلوم، آئے ہو مفتی بننے کے لیے، تمہارے کو صحیح سے اردو پڑھنا نہیں آتی، ہندی میں لکھتے ہو اور یہ جو ہے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. حریم لطیف لا بالی، بکرنول است لطف لا یزالی، خوشا مہمان نوازے ماں غریباں، جزاک اللہ رب ذوالجلالی. یہ اشعار جو ہیں تو حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اشعار جو ہے تو میں اس میں کیوں پڑھ رہا ہوں. تو حضرت عبداللطیف شاہ لاباولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار جو ہے دکن میں کرنول میں ہے. آپ حضور غوث اعظم کی اولادوں میں سے ہیں اور سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. اور دکن میں تقریباً جتنے سادات جیلانی ہیں زیادہ تر جو ہیں تو شاہ عبداللطیف لاباولی رحمۃ اللہ علیہ کی اولادوں سے ہیں. خصوصاً حضرت قاجم پاشا صاحب قبلہ جو تھے خطیب دکن، وہ خود بھی شاہ عبداللطیف لاباولی کی اولادوں میں سے تھے. حضرت شاہ عبداللطیف کا لقب تھا لاباولی. لاباولی یعنی کان کے اندر جو ہے آپ بالی پہنتے تھے، کان کی لو میں لو بالی کان کے اندر پہنتے تھے. اور جب ہمارے یہاں پر سلسلے کے اندر جب سجرہ لکھا جاتا ہے تو مریدین کے لیے لکھا جاتا ہے حلقہ بگوشان. گوش کہتے ہیں کان کو، حلقہ بگوشان یعنی کان کے حلقے کے اندر کے. تو یہ جو کان میں جو حلقہ ڈالا جاتا تھا یہ غلامی کی نشانی کے لیے مریدین کو ڈالا جاتا تھا. شاہ عبداللطیف لاباولی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی شان میں حضور محدث اعظم ہند نے یہ قصیدہ لکھا کہ حضور محدث صاحب جو ہیں تو دکن تشریف لے گئے تھے. اور جب وہاں تشریف لے گئے حضور محدث صاحب تو کیا کہتے ہیں، آپ کو پتھری کے عارضہ میں مبتلا تھے حضور محدث صاحب. تو وہاں کے سجادہ نشین صاحب سجادہ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ حضور آپ ہمارے یہاں آستانے میں زیارت کے لیے شرف قدم بوسی کے لیے تشریف لائیے. تو حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ جو حضور مدنی میاں ہاشمی میاں کے والد بزرگوار ہیں، حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے نواسے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں تو عارضۂ پتھری کے اندر جو ہوں تو اسٹون کے مرض میں مبتلا ہوں، اگر میں اس سے افاقہ پا گیا تو میں ضرور آؤں گا. آپ نے یہ وعدہ کیا اور اسی رات جو ہے تو وہ پتھر جو ہے آپ کو اس مرض سے شفا ہو گئی. اور شفا ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کلام لکھا تھا حضرت شاہ عبداللطیف لاباولی کے. اور شاہ عبداللطیف لاباولی بھی جو ہے تو کان میں بالی پہنتے تھے، اس لیے آپ کا نام تھا لاباولی.